Hello dear students, I hope you all are doing well and I also hope that you are enjoying history lessons with me. So in the previous chapter we talked about the nationalism in Europe and in today's chapter we will be learning about nationalism in India. Okay, so let us quickly see what all I am going to teach you in this chapter. So we will be beginning with the introduction part, then I will be telling you about the First World War, the Khilafat Andolan and the non-cooperation movement. Then we'll be learning about different strands within the movement. Then we'll be learning about the civil disobedience movement, and finally we will be learning about the sense of collective belonging within the people of India. So let us quickly begin the chapter. See, in the previous chapter we have learnt about nationalism in Europe, that how people of Europe, they understood their their own identity, they could understand their sense of belongingness, and then they formed the nation state, right? In the entire Europe, nation states came into existence, right? So this modern nationalism was associated with the formation of nation states. So when we talk about modern nationalism, so it is basically associated with the formation of nation states, that how nation states come into existence, right? In India, like many other colonies, the growth of modern nationalism is connected to the anti-colonial movement. Now in India, India was a colony of Britain, and the people of Britain were torturing people of India, right? They were taking advantage of people of India. They were draining the wealth from India. So gradually people of India realized that the policies of British are very bad, and they are exploiting us. Okay, so anti-colonial movement started in India. In the previous chapter I taught you about anti-imperialistic movements, right? So anti-colonial movements means the movements which were against the British government. British government was ruling India, right? So India was a colony of Britain. So many movements took place in India that were against the British rule in India, right? So like this, people of India, they could कनेक्ट विद ईच अदर. उनको समझ में आया कि नहीं, ब्रिटिशर्स को अब जाना पड़ेगा, हमें हमारा खुद का राज्य चाहिए यहाँ पर. तो उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चलाए. सो इस चैप्टर में हम कुछ मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट? सो लेट अस क्विकली हैव अ लुक. Let us begin with the First World War, Khilafat and non-cooperation. You all know in the previous chapter I have told you about First World War, right? Balkan States वाला हमने पूरा देखा था कि किस तरीके से World War I का वो एक मुद्दा बना, and then World War I began. So the First World War happened between 1914 to 1918. It created a new political and economic situation in the years after 1919. ओके, तो क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज एंडेड इन 1918. जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1919 ऑनवर्ड्स एक नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन अराइज हुआ इंडिया में. कैसे? इंडिया फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द वॉर पीरियड. नाउ यू ऑल नो वॉर्स आर वेरी एक्सपेंसिव. वॉर कम्स विद अ हैवी प्राइस, राइट? एक तो बहुत सारे सोल्जर्स मर जाते हैं, खर्चा बहुत होता है, देश में महंगाई बहुत बढ़ जाती है, राइट? सो अब many Indians were also participating in World War I. बेचारे, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन they were forced to participate, right? तो बहुत सारे problems इंडिया को face करने पड़े इसके अलावा भी. See, so what happened? First of all, income tax was introduced. अभी तक there was no concept of income tax, right? But as World War I ended, Britishers also had suffered a loss, right? So Britishers ने क्या किया? इंडिया के ऊपर income tax लगा दिया. लोग whatever income they are earning, they have to pay टैक्स ऑन इट, जैसे आज के टाइम पर हम देते हैं इनकम टैक्स. तो इन्होंने सबसे पहले उसकी शुरुआत करी थी ब्रिटिशर्स ने. सो दे इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हिच इज अ बर्डन ऑन पीपल, राइट? एंड देन द प्राइसेस ऑफ कस्टम ड्यूटीज वर डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918. कस्टम ड्यूटी मतलब द गुड्स विच वर कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन इन इंडिया, तो उसके ऊपर उन्होंने कस्टम ड्यूटी एक्स्ट्रा कर दी. इससे क्या होगा? गुड्स क्या होंगे? महंगे हो जाएंगे, which led to a very difficult life for common people. तो इससे कॉमन लोगों की जो लाइफ थी, it became very difficult, right? Because महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर किस पे पड़ेगा? आम लोगों पर ही पड़ेगा ना, अमीरों पे तो पड़ेगा नहीं. अगर वेजिटेबल्स महंगे हो रहे हैं इंडिया में, जैसे हम कई बार देखते हैं कि प्याज बहुत महंगा हो रहा है ना. प्याज अभी कुछ दिनों पहले लेमन्स वर वेरी एक्सपेंसिव, राइट? नींबू के प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगे हुए थे. आई थिंक 400 रुपए किलो के आसपास नींबू बिक रहे थे, है ना? तो
इससे अंबानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे किसको फर्क पड़ता है? मिडिल क्लास लोगों को, राइट, कॉमन लोगों को। सो उस टाइम पे भी ऐसा ही हो रहा था कि जब प्राइसेस, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा था, इनकम टैक्स लग गया था, राइट, तो इससे कॉमन लोगों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई। देन हार्डशिप्स डिड नॉट एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर, एंड ये हार्डशिप्स वॉर के खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं हुई। कि पहले तो लग रहा था कि चलो ब्रिटिशर्स वर promising Indians that you participate in World War One. See, people were not ready to fight World War One on the behalf of Britishers. Why would Indians take part in World War One? है ना, क्यों करेंगे वो बेचारे, वहां पे उनकी जान को खतरा है। Britishers made a fake promise that if you will participate in World War One, we'll give you some kind of freedom. लोग थोड़े से उनकी बातों में आ गए and then they participated. As the World War One got over, लोगों को लगा कि अब हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। But the situation was completely different. क्या हुआ? India started facing many more problems after the war. Income tax आ गया, inflation बढ़ गया, taxes बढ़ गए. The life became very very difficult for the common people. Then what happened? Increase in defense expenditure. डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। एज आई टोल्ड यू, ब्रिटिशर्स टुक पार्ट इन वर्ल्ड वॉर वन, तो उनके लिए भी द वॉर केम विद अ हेवी कॉस्ट, राइट। सो डिफेंस के एक्सपेंडिचर उनको और बढ़ाने पड़ गए। प्राइसेस इंक्रीज्ड थ्रू द वॉर ईयर्स। नाउ ऑब्वियसली द प्राइसेस, महंगाई तो बढ़ेगी, जब जब वॉर होते हैं महंगाई बढ़ती है। जैसे अभी हम क्या देख रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के अंदर वॉर चल रहा है, तो क्या देख रहे हैं, ऑफन इन द न्यूज़पेपर्स वी गेट टू रीड द आर्टिकल्स कि भाई अब महंगाई बढ़ेगी। तो वॉर्स जैसे जैसे होते हैं महंगाई बढ़ती जाती है, तो उस टाइम पे भी यही हो रहा था। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, ब्रिटिशर्स वर फोर्सिंग पीपल। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मीन्स दे वर फोर्सिंग पीपल against the will of people. Britishers were telling कि भाई नहीं, you come and fight the war, become a soldier. Unnecessarily they were forcing people. So this was the forced recruitment in the army. लोगों की इच्छा के विरुद्ध, उनका मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन जबरदस्ती उनको उन्होंने आर्मी में भर्ती करवाया। During 1918-19 and 1920-21, crops failure in many parts of India resulting in shortage of food accompanied by an influenza epidemic. Now 1918 to 1919, then 1920 to 2021, 1920 to 1921, I'm sorry for 2021, क्रॉप्स फेल हो गए बहुत सारे प्लेसेस पे इंडिया में, राइट। तो उससे क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड होगा। साथ ही साथ जो सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर वन में लड़ाई करने दूसरे कंट्रीज में जा रहे थे, वो अपने साथ बीमारियां भी लेकर आ रहे थे, तो बीमारियां भी बहुत फैल रही थी, राइट। एपिडेमिक्स, एपिडेमिक क्या होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फैलते हैं, राइट। पेंडेमिक्स कौन से होते हैं, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलते हैं, जैसे कोविड, कोविड इज अ पेंडेमिक, राइट। नाउ अब ये सारे प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर चल रहे हैं। So at this stage, a new leader appeared and struggled and suggested a new mode of struggle. Now ये सारे problems इंडिया के अंदर बहुत सारे चल रहे हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसे टाइम पे एक नया लीडर आया और उन्होंने एक नया न्यू मेथड स्ट्रगल का सजेस्ट किया। क्या था वो मेथड? लेट अस क्विकली सी। So now we are going to learn about that particular leader who is Mahatma Gandhi. So in January 1915, Mahatma Gandhi returned to India from South Africa and started a movement called Satyagraha. January 1915 में महात्मा गांधी came back from South Africa, ठीक है। See, that is why in January, I think Mahatma Gandhi came on 9th January from South Africa. That is why 9th January को we celebrate NRI Day in India. महात्मा गांधी भी इंडिया से कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका, तो NRI तो हुए, राइट। ओके, सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, but just wanted to tell you. So Mahatma Gandhi came back from South Africa in January 1915 and he started a movement called Satyagraha. Now Satyagraha means, Satya means truth, right? Satya का आग्रह is called Satyagraha, right? So he started a different kind of movement, Satyagraha, which is non-violent, right? Because Mahatma Gandhi never believed in violence. Okay, so you can see in the picture Mahatma Gandhi is here, okay, along with some other people. Okay, so what is Satyagraha? In exam it might come, define Satyagraha. So what will you write? So Satyagraha is a novel way of fighting the colonial rule in India. Novel means a new way, a different way, right? So it is a different method of fighting the colonial rule of India. Colonials कौन थे? British, right? So Satyagraha में महात्मा गांधी suggested a new way of fighting the Britishers. Okay, so what is this new way? It is non-aggressive. As I told you,
गुस्सा तो करना ही नहीं था, बिल्कुल भी वॉयलेंस नहीं कर, गुस्से से क्या आता है, वॉयलेंस आता है, तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, नॉन एग्रेसिव मेथड है। पीसफुल मास एजिटेशन अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। सो उन्होंने क्या बोला कि पीसफुली सब लोग क्या दिखाएंगे, अपना गुस्सा दिखाएंगे, किसके खिलाफ, जो भी ब्रिटिशर्स ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट वी विल बी ऑल गैदर्ड टुगेदर एंड वी विल बी डूइंग, शांति से, एक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से एक सत्याग्रह करेंगे। ओके, सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, सत्य का आग्रह, एज आई टोल्ड यू इज कॉल्ड सत्याग्रह, इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ। ओके, सत्य पे ही वो जोर फोकस कर रहे थे कि सच क्या है। सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for the truth. Okay. According to Mahatma Gandhi, people can win a battle with non-violence, which will unite all Indians. So महात्मा गांधी क्या सोचते थे कि people can win any battle with non-violence, right? With a peaceful way. Okay. And it will unite everyone together. It will unite all the Indians together. So we know, we all know कि अगर हम unite होकर के कोई काम करते तो ज़्यादा successful होता है, right? Unity is best, है ना? तो महात्मा गांधी सजेस्टेड दैट वी ऑल शुड यूनाइट टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो जब बहुत सारे लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाएंगे तो ब्रिटिशर्स कमजोर पड़ जाएंगे और फाइनली उनको हमारी बात माननी पड़ेगी, राइट? सो महात्मा गांधी वांटेड दैट एवरीबडी शुड कम अप टुगेदर, ऑल द सेक्शंस ऑफ इंडिया, एवरीबडी शुड कम अप टुगेदर एंड एक नॉन वायलेंस तरीके से विल बी डूइंग पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज कॉलोनियल रूल। सो Satyagraha is a moral force, not resistance. Okay. Gandhi ji organized Satyagraha movements in Champaran in 1917. तो अब in this we are gonna learn about Satyagraha, right? तो इसमें उन्होंने 3 आंदोलन किए थे। तो the first movement which we are gonna learn is चंपारण। सो चंपारण कहाँ पर है? चंपारण है बिहार में, राइट? सो महात्मा गांधी, देयर वाज सम मूवमेंट गोइंग ऑन इन बिहार एंड महात्मा गांधी सपोर्टेड इट। तो हम देखते हैं वो क्या था। सो महात्मा गांधी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार, Champaran is in Bihar as I told you, to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. तो उस टाइम पे इंडिगो का कल्टीवेशन होता था, राइट? कलर्स का तो उस टाइम तक आविष्कार हुआ नहीं था, है ना? तो और अगर हो भी गया था तो ब्रिटिशर्स को क्या करना था? सिर्फ खुद का प्रॉफिट बढ़ाना था। तो वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स यूज टू आस्क फार्मर्स कि तुम क्या करो, इंडिगो को कल्टीवेट करो, है ना? अब इंडिगो कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्या आती है कि जो लैंड होता है ना उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, राइट? सो पेजेंट्स वर अगेंस्ट दिस थिंग, ओके, कि भाई हम नहीं करेंगे ये इंडिगो का कल्टीवेशन, है ना? सो दे वर अगेंस्ट इट, द पेजेंट्स। सो महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण एंड ही सपोर्टेड, और फाइनली ब्रिटिशर्स को उनकी बात माननी पड़ी, ठीक है? तो ये पहला जो आंदोलन उन्होंने किया था वो किया था चंपारण में इन 1917। देन the second movement was in Kheda. Kheda is a district of Gujarat. Okay, so ये कब हुआ? This also happened in 1917 only. It was launched for peasants which were affected by a crop failure, okay, and plague epidemic. Okay, तो अब क्या हुआ, उस टाइम पे प्लेग की बीमारी फैली थी, ओके, और फसलें भी सारी खराब हो गई थी, बट स्टिल ब्रिटिशर्स वर सेइंग कि यू गिव अस रेवेन्यू। अब जब फसलें ही नहीं हुई तो रेवेन्यू बेचारे कहाँ से टैक्स देंगे लोग, राइट? सो गांधी जी ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पेजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, डिमांडिंग रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। ब्रिटिशर्स का काम क्या था? सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना और लोगों को बिल्कुल इग्नोर करना। उनको बिल्कुल लोगों के हित की चिंता नहीं थी, राइट? उनको सिर्फ टैक्स कलेक्शन पे और रेवेन्यू पे ध्यान रहता था। सो दे वर डिमांडिंग, द पेजेंट्स वर डिमांडिंग कि भाई क्रॉप्स फेलियर भी हो गया है, ऊपर से प्लेग की बीमारी भी फैली हुई है, आप हम पे इतना टैक्स मत लगाओ। बट ब्रिटिशर्स वर नॉट रेडी टू लिसन। सो फाइनली महात्मा गांधी came to Kheda, which is in Gujarat, and he along with peasants he did a movement against the British to give the relaxation in the revenue. Then third movement happened in Ahmedabad. So in Ahmedabad in 1918, okay, so in 1918 Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst cotton mill workers. तो उस टाइम पे अहमदाबाद में कॉटन मिल के जो एम्प्लॉयज थे, दे वेंट ऑन स्ट्राइक। व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे अभी हमने क्या देखा, प्लेग भी फैल रहा था, राइट? तो जब ये प्लेग फैला
तो जो अहमदाबाद के मिल के जो ओनर थे उन्होंने प्लेग बोनस दिया लोगों को। नेक्स्ट ईयर 1918 में उन्होंने क्या बोला कि अब हम बोनस नहीं देंगे। तो जो एम्प्लॉयज़ थे वो गुस्से में आ गए, वो बोले भाई ऐसे कैसे, महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, जब क्रॉप फेलियर होगा, बीमारियां फैलेंगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी ना। So the workers demanded that we need the bonus, right? But the owner denied. So Mahatma Gandhi came to Ahmedabad along with these workers. उन्होंने क्या किया, उन्होंने, महात्मा गांधी वॉज वेरी स्मार्ट, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम एकदम से डबल पूरी सैलरी का बोनस मांगोगे तो ये कभी नहीं मांगेंगे, है ना। तो फिर उन्होंने 50% किया। फिर फाइनली महात्मा गांधी ने कहा कि 35% पे मान लेते हैं। तो फाइनली फिर महात्मा गांधी ने आंदोलन किया अहमदाबाद में, और फिर मजदूरों की 35% बोनस की जो बात थी वो मान ली ब्रिटिशर्स ने, एंड देन अहमदाबाद का उनका ये जो आंदोलन था इट वॉज सक्सेसफुल। ओके, सो दिस वॉज अबाउट दीज 3 मूवमेंट्स विच गांधी जी स्टार्टेड। नाउ we will be learning about the Rowlatt Act. What was it? So, in 1919, Mahatma Gandhi launched a nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act. ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम क्या करेंगे, तुम हमारी हेल्प करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बी विद अस, फाइट ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटेन, टेक पार्ट इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड देन विल गिव यू सम काइंड ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या कर दी, हालत और ख़राब कर दी, इनकम टैक्स लगा दिया, राइट, बहुत सारे अलग टैक्सेस लगा दिए, महंगाई ऑलरेडी बढ़ गई थी, सो मेनी थिंग्स, है ना, तो परेशान करने लगे। उसी में उन्होंने क्या किया, एक रॉलेट एक्ट और लेकर के आ गए, हेल्प तो की नहीं, काम और ख़राब कर दिया, रॉलेट एक्ट ला करके। अब ये क्या था, This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. अच्छा, ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, तो उन्होंने क्या किया, एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, उसमें थोड़े बहुत इंडियंस को भी उन्होंने शामिल कर लिया, ठीक है, ताकि, क्योंकि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, द रिवोल्ट विच टुक प्लेस इन 1857, तो उनको डर था कि कहीं दोबारा से ऐसा नहीं हो जाए, राइट। इसीलिए कांग्रेस की भी उन्होंने स्थापना करी, है ना। उसके अंदर कौन था, एओयू में थे उसके संस्थापक, विच वॉज अ ब्रिटिश। तो इन्होंने क्या किया, इंडियंस को एक तरीके से हम क्या बोलते हैं हिंदी में कि गोली दे दी, गोली देने वाला काम, है ना। तो थोड़े बहुत इंडियंस को भी उसमें उन्होंने बिठा दिया। इंडियंस ने अपोज किया कि आप इस एक्ट को पास मत करिए, बट स्टिल even after the opposition of the Indian members, this act had been hurriedly, मतलब जल्दबाजी में उन्होंने क्या कर दिया, पास कर दिया अपनी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, डिस्पाइट द ऑपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, है ना। अब what this act did, क्या करने वाला था ये एक्ट, दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स, मतलब गवर्नमेंट को उन्होंने बहुत सारे, मतलब इस एक्ट ने गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर्स दे दिए। कैसे पावर्स, टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है, and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. मतलब किसी को भी कभी भी क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई तो उसको उसी टाइम पर क्या करो, रिप्रेस करो। दिस वाज समथिंग वेरी वेरी बैड। नाउ महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज व्हिच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6th April. Now Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience, which should be non-violent civil disobedience against such unjust laws. So this Rowlatt Act, don't you think it was an unjust law? I mean, you can arrest anyone, right? You can suppress any political activity which was something very bad, right? So Mahatma Gandhi wanted that we will be, opposing such unjust laws, but in a peaceful manner, okay, in a non-violent manner, okay, and it will start with a hartal. Hartal means strike on 6th of April, okay, against the Rowlatt Act. All right. So what happened? Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops and shops closed down. So Mahatma Gandhi appealed to everyone, right, and rallies were organized in different cities. All the workers, they went on strikes in railway workshops also, and shops were also closed down. Now Britishers thought that if railway workers will go on strike, तो फिर हमारा तो काम ही बंद हो जाएगा, है ना। So British administration decided to clamp down on nationalists. अब British administration ने क्या किया कि भाई इनको तो अब रोकना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा।
So what Britishers did, they picked up local leaders and arrested them. Okay, so local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. Okay, so उन्होंने क्या किया, local leaders को pick up किया, कुछ को arrest किया and they told that Mahatma Gandhi cannot enter Delhi, क्योंकि महात्मा गांधी if he would have entered Delhi तो लोग उनको और support करने के लिए आ जाते तो movement और large scale पे चल पड़ता. Britishers were scared, so that is why they said that Mahatma Gandhi cannot enter Delhi. On April 10th, police in Amritsar fired on a peaceful procession. Okay, so people were protesting everywhere, people were organizing rallies everywhere. Similarly, some people in Amritsar organized a peaceful protest, right? And police fired on these people. अब इसका इस पुलिस के इस एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ, right? Action reaction theory, you know, which provoked widespread attacks on banks, post offices and railway station. लोग इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए. People got angry and they attacked banks, post offices and railway stations. All those organizations which were run by Britishers, right? अब Britishers ने क्या अपना रिएक्शन दिया? Britishers also could not take it, है ना? तो उन्होंने क्या किया? मार्शल लॉ लगा दिया and जनरल डायर took over कमांड. ठीक है, जनरल डायर कौन था? He was a British officer. इसने क्या किया? मार्शल लॉ लगा दिया दैट पीपल कैन नॉट गैदर हियर एंड देयर. ठीक है, और जनरल डायर के हाथ में अब क्या आ गई? कमांड आ गई. बट ही मतलब इन्होंने थोड़ा बहुत ये चोरी छुपी किया. मार्शल लॉ जो लगाया, बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन दी नहीं इस बारे में, राइट? सो व्हाट हैपेंड ऑन 13th April 1919, the unfortunate incident, the most unfortunate incident happened, which is called the Jallianwala Bagh massacre, right? So 13th April, you all know that is the day of Baisakhi. पंजाब में लोग बहुत अच्छे से this celebrate Baisakhi, है ना? So what happened? A huge crowd gathered in the Jallianwala Bagh, where a few people came to protest against the government's new repressive measures. तो उस जलियांवाला बाग में क्या था? Some people came to protest against this Rowlatt Act, while some came to attend the annual Baisakhi fair. अदरवाइज जो प्रोटेस्ट करने तो आए हुए थे, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे, दोज हु ओनली केम टू एंजॉय द बैसाखी फेयर. सो 13th April इट इज सेलिब्रेटेड एज बैसाखी, राइट? स्पेशली इन पंजाब. तो वहाँ पर मेला लगा हुआ था. पीपल केम खाने पीने, थोड़ा बहुत मस्ती करने, झूला झूलने. ऑल एवरीबडी केम टू अटेंड द फेयर. नॉट एवरीबडी, फ्यू पीपल, राइट? एंड फ्यू पीपल केम टू प्रोटेस्ट. अब क्या हुआ? जनरल डायर जो था उसको तो मौका चाहिए था. तो इस जनरल डायर ने क्या किया? ही एंटर्ड जलियांवाला बाग. ही ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट. सारे एग्जिट पॉइंट उसने सारे गेट बंद करवा दिए. एंड ही ओपनड फायर ऑन द क्राउड. उसने सारे सोल्जर्स को क्या कमांड दी कि सब पे क्या कर दो? फायर कर दो. एंड ही किल्ड hundreds of people in जलियांवाला बाग. सो दिस वॉज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जो क्या है? इतिहास का एक काला दिन है. After the Jallianwala Bagh massacre, news spread, strikes, clashes with the police and attacks on government buildings started. अब इससे क्या हुआ? People got furious and they started attacking government buildings. They, people went on strikes. There were many fights with the police, right? Because ये इतनी ज़्यादा घटिया इंसिडेंट था. जो जनरल डायर ने जो हरकत करी थी वो बहुत ही घटिया थी, तो लोगों को गुस्सा तो आना ही था. अब गवर्नमेंट ने इसका बदला लेने के लिए क्या किया था? गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन. गवर्नमेंट ने भी क्या किया? बहुत ज़्यादा बदतमीजी उन्होंने लोगों के साथ की. जितने भी लोग सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको, है ना, बोलते थे तुम नाक रगड़ के दिखाओ हमारे सामने. बहुत ज़्यादा उनके साथ उन्होंने उसको ब्रूटल वे में रिप्रेस किया, इस स्ट्राइक को, इस प्रोटेस्ट को. So Mahatma Gandhi thought, and they even arrested people. So Mahatma Gandhi thought that मैंने तो non-violence करने का सोचा था. अब non-violence से इतनी सारी चीजें हो रही है. Violence ही violence कर रहे हैं ना ब्रिटिश सरकार हमारे साथ. भाई हम तो non-violence करना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार तो हमारे साथ non-violence दिखाई नहीं रही है, वो तो violent हो रहे हैं. And many people were arrested also. So Mahatma Gandhi felt very bad about it. So he called off the Satyagraha movement as the violence spread. Okay. To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.